वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं आज हम सेकंड्स काउंट करेंगे कि कितने सेकंड्स में होल्ड कर रहा हूँ। हमारा हफ्ते का जो टारगेट था वो ये था कि जो हमारा सूडो प्लांच होल्ड है वो 1 मिनट जाना चाहिए, जो हमारा टक स्टैंड होल्ड है वो भी 1 मिनट जाना चाहिए टोटल, और 30 प्लस हमारा सूडो प्लांच पुशअप्स होना चाहिए। आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे और कल भी हम उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट वीक का टास्क स्टार्ट करेंगे। और आज मैं अपने टेरेस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि इवेंट है मेरे ऑफिस में, तो शाम का टाइम नहीं मिल पाएगा और सुबह मैं नहीं उठ पाया कि रात को 3:30-4 बजे के करीब सोया था। तो हम वर्कआउट अपना स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट हमें अपना मिस नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने अभी सुबह नहीं किया तो शाम के टाइम शायद मेरे को टाइम ना मिल पाए और स्ट्रीक टूटना मेरे लिए बहुत बुरी चीज़ होगी। We're running at 40% most of us, you know, because we're half in and half out. And it's not surprising because life is difficult. It's like, well, what if you were 90% in or 95% in or all in? Because you're all in anyways, right? It's a life and death game. No one gets out of this. Everyone dies. You might as well commit yourself. Well, people don't do that. They don't sit down and think, all right, you know, let's figure it out. You've got a life. It's hard, obviously. It's like 3 years from now, you can have what you need. You got to be careful about it. You can't have everything. You can have what would be good for you, but you have to figure out what it is, and then you have to aim at it. Well, my experience with people has been is if they figure out what it is that would be good for them, and then they aim at it, then they get it. And it's strange because they don't it's a strange thing. It's not quite that simple because, you know, you may formulate an idea about what would be good for you, and then you take 10 steps towards that and you find out that your formulation was a bit off, and so you have to reformulate your goal. You know, so you're kind of going like this as you move towards the goal. But a huge part of the reason that people fail is because they don't ever set up the criteria for success. And so, since success is a very narrow line and very unlikely, the probability that you're going to stumble on it randomly is 0. And so there's a proposition here, and the proposition is, if you actually want something, you can have it. Now the question then would be, well, what do you mean by actually want? And the answer is that you reorient your life in every possible way to make the probability that that will occur as certain as possible. And that's a sacrificial idea, right? It's like, you don't get everything. Obviously. But maybe you can have what you need. And maybe all you have to do to get it is ask. But asking isn't a whim or today's wish. It's like, you have to be deadly serious about it. You have to think, okay, like I'm taking stock of myself. And if I was going to live properly in the world and I was going to set myself up such that being would justify itself in my estimation, and I don't mean as a harsh judge, exactly what is it that I would aim at? And often people won't specify their goals too because they don't like to specify conditions for failure. So if you keep yourself all vague and foggy, which is real easy because that's just a matter of not doing as well, then you don't know when you fail. And people might say, well, I really don't want to know when I fail because that's painful. So I'll keep myself blind about when I fail. That's fine, except you'll fail all the time then. You just won't know it until you've failed so badly that you're done. And that can easily happen by the time you're 40. So I would recommend that you don't let that happen. So that's willful blindness, right? You could have known, but you chose not to. Okay, so once you get your goal structure set up, you think, okay, if I could have this life, looks like that might be worth living, despite the fact that it's going to be, you know, anxiety provoking and threatening, and there's going to be some suffering and loss involved and all of that. Obviously, the goal is to have a vision for your life such that, all things considered, that justifies your effort. Okay, so then what do? Well, then you turn down to the micro routines. It's like, okay, well, this is what I'm aiming for. How does that instantiate itself day to day, week to week, month to month? And that's where something like a schedule can be unbelievably useful. Google Calendar. It's like, make a damn schedule and stick to it. Okay, so what's the rule with a schedule? It's not a bloody prison. That's the first thing that people do wrong. They say, well, I don't like to follow a schedule. Well, it's like, well, what kind of schedule are you setting up? Well, I have to do this, then I have to do this, then I have to do this.
you know, and then I just go play video games, because who wants to do all these things that I have to do? It's like, wrong. Set the damn schedule up so that you have the day you want. That's the trick. It's like, okay, I've got tomorrow. If I was going to set it up so it was the best possible day I could have, practically speaking, what would it look like? Well, then you schedule that. And obviously there's a bit of responsibility that's going to go along with that, because if you have any sense, one of the things that you're going to insist upon is that at the end of the day, you're not in worse shape than you were than at the beginning of the day, right? Because that's a stupid day. If you have a bunch of those in a row, you just dig, you know, you dig yourself a hole and then you bury yourself in it. It's like, sorry, that's just not a good strategy. It's a bad strategy. So maybe 20% of your day has to be responsibility and obligation, or maybe it's more than that, depending on how far behind you are. But even that, you can ask yourself, okay, well, I've got these responsibilities. I have to schedule the damn things in. What's the right ratio of responsibility to reward? And you can ask yourself that, just like you'd negotiate with someone who is working for you. It's like, okay, you got to work tomorrow. Okay, so I want you to work tomorrow. And you might say, okay, well, what are you going to do for me that makes it likely that I'll work for you? Well, you could ask yourself that, you know. So maybe you do an hour of responsibility and then you play a video game for 15 minutes. I don't know, whatever turns your crank, man. But, you know, you have to negotiate with yourself and not tyrannize yourself. Like you're negotiating with someone that you care for, that you would like to be productive and have a good life. And that's how you make the schedule. It's like, and then you look at the day and you think, well, if I had that day, that'd be good. Great. You know, and you're useless and horrible, so you'll probably only hit it with about 70% accuracy, but that beats the hell out of 0, right? And if you hit it even with 50% accuracy, another rule is, well, aim for 51% the next week, or 50.5% for God's sake, or because you're going to hit that position where things start to loop back positively and spiral you upward. That's rule 1, right? To stand up straight with your shoulders back, is to take on the onslaught and to enter the contentious ring, and to do more than your best, because your best isn't enough, because your best isn't as good as you could be. You have to push yourself past that, and that's, as far as I can tell, where you find what you need in life. You find the meaning that sustains you in life, and you find the patterns of action that redeem the world, both at the same time. I mean, life is a very difficult business. You know, it's fatal, and it's full of suffering, and it's full of betrayal and malevolence. There's nothing about it that's trivial. It's all profound. And in order to find your way through all of that capacity for hellish experience, let's say, you need to develop a relationship with something that's profound. And you have that capacity. And so, what's the decision that you make? You know, you decide to believe. You know, it's a risk, an existential risk. It's an act of faith. You believe that the truth can set you free. You believe that people have an intrinsic divinity about their soul. You decide that you're going to live in that manner, and that you're going to let everything about yourself that isn't worthy of that goal die. And that might be almost everything that you are. And that's a terrible thing to contemplate. The only thing that's worse, I would say, is the alternative. Because the alternative is the sorts of hells that we managed to produce around us, and that we produced with particular expertise during the totalitarian regimes of the 20th century. And it would be a good thing if we decided collectively and individually not to go back there again.
क्या करूँ? मैं नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। बड़ा आदमी हूँ मैं, बड़ा आदमी। अभी 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 जिंदगी खराब है बस मेरी, कुछ टाइम रुक जाओ बस। लोग मेरे अंडर जॉब करेंगे ताकि मैं लोगों के अंडर जॉब करूँ। क्या धोए हो क्या? सैलरी भी आ गई है, कैसे नहीं निकाल पाऊंगा? कोशिश करूंगा शाम को, क्योंकि रात को लेट हो जा रहा है, निकालने पर। तभी मैंने आपको 10 दे दिए ताकि काम स्टार्ट हो जाए। नहीं, मेट्रो में एटीएम कोई बार खुला हुआ मिल जाता है ना मेट्रो के अंदर ही, अगर वहाँ से मेट्रो वाला प्लान बनता है तो वो निकाल ले हम। मैंने इसलिए आपको 10 दे दिया ताकि कोई नहीं, हो जाएगा, 2-3 दिन और काम लग रहा है। दो तीन दिन 4 दिन का काम लग रहा है, इस हफ्ते में लग रहा है आज ही। तो दांत का हो गया? नहीं, इसका काम आज तक खत्म हो गया। नहीं मतलब जो भी 2-3 काम थे उनके वो इसी हफ्ते में खत्म हो गए। दूसरा कागज का काम था, आज तो पंच का ऐसा है और बड़ा कि दुकान पर देखूंगा, दुकान में जाऊंगा उसके पास, मेरे गाड़ी में से चले जाऊंगा, ये पीपले बैठता है यहीं पे। तो क्या बोलते हैं ये शाम तक में खत्म हो जाएगा, अट्ठा का फोन नहीं है इसमें, वो बस सरिया डाल के उसके अंदर मसाला डाल के सो हमने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है और शाम को अगर टाइम मिला तो हम बाकी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। बाकी हमारा जो डेली रूटीन है प्लांच, उसका हमने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है। 48 मिनट लगे हैं टोटल, टाइम हो गया है 20:20 और बहुत लेट हो गया है, मेरे को अब ऑफिस निकलना है। पर बाकी बातें मैं आपसे बाद में करता हूँ, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में भी चल रही है। तो तब तक के लिए स्टिक विद मी एंड विल डू हसल।
हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी हेमंत और आज हमारा डे 2 था एक तरीके से हमारे इवेंट का और मैं अपने घर की तरफ निकल रहा हूँ। 10 बज गए हैं ऑलमोस्ट। हम अभी एरोसिटी वाले स्टॉप पे जा रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को ऐसे बस पकड़नी थी यहाँ से और बस पकड़ के मेरे को एरोसिटी मेट्रो तक जाना था। महिपालपुर विलेज टाइप ऐसा कुछ था, तो वो हो नहीं पाया। तो चलते चलते अब आधा दूर मैं चल ही लिया, तो चल ही रहा हूँ अब और हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। और काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा दिख रहा है। मैंने 2-3 कुछ सेकंड्स की रिकॉर्ड की है वीडियोस, ताकि मैं आपको शो कर पाऊँ। काफ़ी अच्छा एरिया है और एक तरीके से सपने जैसा है, जैसा सपने में दिखता है या सपना हम सोचते हैं कि कैसा होता है कैसा नहीं होता, हमारा घर हमारा एरिया कैसा होगा। हाँ, जहाँ पे इवेंट हो रहा था उससे आधे रास्ते तक थोड़ा सा अजीब सा था, मतलब शायद कंस्ट्रक्शन की वजह से कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो उसकी वजह से चल रहा था ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में काफ़ी वो सही हो जाएगा। पर यहाँ पे अभी मैं हूँ तो काफ़ी सही है, काफ़ी शांत है। मैं आपको अब इस चीज़ को पॉज करके मैं आपको दूसरा फ्रेम दिखाता हूँ। ओके, तो वी टेक द रॉन्ग रूट। देखा, इंग्लिश बोल रहा हूँ, फालतू नहीं। तो हमने रॉन्ग रूट लिया है और अब सेम जहाँ पे मैं बात कर रहा था, हेलो दोस्तों दिस इज़ मी, वहीं से हमें मुड़ना था। तो मैं अभी वहीं पे वापस जा रहा हूँ। मैं आपको दूसरा फ्रेम दिखाता हूँ। सी, हम वहीं पे ही है। पता नहीं दिखाया कि नहीं दिखाया मैंने, पर तो यही सब चीज़ें दिखानी थी आपको। आपको क्या दिखानी थी, मेरे लिए है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा प्रो वाली चीज़ें नहीं कर रहा, नॉर्मल चीज़ें कर रहा हूँ जो कि ऑलमोस्ट हर कोई कर रहा है। ये मैं अपनी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ। सी, मैं इसे दिखा नहीं पा रहा यार। मैं अभी रुक जाओ, इसे क्रॉस करता हूँ ना, जो मेरे को मेरी आंखों से दिख रहा हूँ मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। यहीं से हमें लेफ्ट लेना है, हार्ड लेफ्ट। दिस इज द दिल्ली एरोसिटी, दिल्ली मेट्रो। फुल यहाँ पे काम चल रहा है। मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में काफ़ी ये बढ़िया लगेगा। सी, अब कुछ चीज़ें दिखने लगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ जो है वो कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा है। ये जो डॉट डॉट से बहुत सारे दिख रहे हैं, या हम सही रास्ते पे हैं, क्योंकि एंट्री गेट अब दिख रहा है। ये जो बोर्ड है सामने लगा हुआ है। See, entry gate number 1, we foundly reached. हम पहुंच गए हैं। तो मैं अब यहाँ से शट करता हूँ चीज़ों को। हम मिलते हैं कल सुबह। स्टेशन प्रवेश इस तरफ। हम फिर सीधा जा रहे थे। तो मैं ये कह रहा था, हम मिलते हैं कल सुबह। आज हमने अपना टेरेस पे वर्कआउट किया था, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। अच्छा था ना काफ़ी व्यू। देखो यहाँ पे भी सब कुछ काफ़ी सही है। मतलब कैमरे में उतना सही नहीं आ रहा, कैमरे में ग्रेन्स आ रहे हैं, मेरे को दिख रहा है, पर फिर भी
चलिए बाय। यहाँ पे भी कोई है ही नहीं, या है मैं गलत जगह पे आ रखा हूँ, मुझे नहीं पता। सी 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 नाइस। कल इसके 2 मिनट में मैं बता रहा हूँ। मतलब भाई साहब इसकी लिफ्ट देखो, ये लिफ्ट है ज़्यादा ही बड़ी है और हम जा रहे हैं ऊपर, पता नहीं क्यों। देख रहे हो, सही है। टक नीचे जाना भाई, नीचे नीचे। हेलो, हाँ भैया। नहीं मैं तो अभी घर पे हूँ, मैं घर पे हूँ अभी। नहीं मैं अगर 1 घंटा और लेट निकलूंगा, कुछ है रीज़न, मैं अभी मिलके बताऊंगा। मतलब ये है कि मेरे को 11:30 बज जाएंगे ऑफिस पहुँचते पहुँचते। और वहाँ से फिर वही ना, अगर नीरज भैया होंगे तो उनके साथ ही निकलूंगा, नहीं तो फिर वहाँ से फिर मेट्रो वेट्रो करके आऊँगा। नहीं तो आप निकल गए हो? चलो बढ़िया।
मेरे को नहीं लगता कन्वेंशन देगा, इसलिए ज़्यादा पैसे से भी मत खर्च करना। साकेत से मैंने देखा था, साकेत से बस मिल रही थी 15 रुपए की टिकट में, पहुंचा दे रही थी वहाँ पे डायरेक्ट, सीधा बस है साकेत से। हाँ एरोसिटी नहीं, वो जो जहाँ पे भी वो एक उसका वो बस स्टैंड है, वो दिखाना था एरोसिटी के पास से जो बस स्टैंड दिखा रहा था वो लेने के लिए, तो वो साकेत से बन के जा रही है। हाँ जो भी है, मतलब 2-3 मिनट का रास्ता दिखा रहा था। मतलब ये है कि अगर आप साकेत से अगर जाओगे तो अगर बस लोगे तो 15 रुपये लगेगा, और 2-3 मिनट की वॉक है वहाँ से, फिर उसके साथ पहुँच जाओगे। मतलब जो उसने एड्रेस भेजा है उसको मैंने मैप में डाल के देखना, साकेत से डाल के देखना, एक कापासीटा बॉर्डर वाली कोई बस है वो लेके जा रही है डायरेक्ट। यही है, मैं तो सीधा साकेत ही पहुंचूंगा। अगर वहाँ पे नीरज भैया मिले तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो मैं वहाँ से वही बस से आऊँगा। मैं कितना टाइम वेस्ट करूँ, अभी मेरे को टाइम लगेगा, मैं 1 घंटे में निकलूंगा। मैं आपसे मिल के बात करता हूँ, मैं थोड़ा भी फंसा हुआ। कॉल किया था भैया, बताओ। हाँ नहीं अभी नहीं पहुंचा, मेरे को भी 1 घंटा लगेगा यहाँ से, भाई मैं घर पे ही हूँ। मैं वहाँ पे बज जाएंगे 10:30-11 बज जाएंगे मेरे को पहुँचते पहुँचते, 11:30 भी हो सकता है मेरे को ऑफिस पहुँचते पहुँचते। हाँ नहीं वो नीरज भैया की बाइक है, उनके साथ आऊंगा। नहीं तो अगर वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो वहाँ से सीधा वो मेट्रो से आऊंगा, साकेत से। पहले साकेत ही पहुंचूंगा, वहाँ पे देखता हूँ। रोहित भैया के साथ तो नहीं हूँ, रोहित भैया के साथ ऑलरेडी लोग हैं। सर ने वो मैसेज नहीं डाला, उसमें बोला कि नीरज भैया के साथ आना। हाँ सिस्टम जाएगा। हाँ हाँ मैं वैसे अभी थोड़ा रेडी वेडी हो रहा था, अभी निकलूंगा, आधे 1 घंटे में निकलूंगा, मेरे को लेट हो जाएगा थोड़ा। चलो ठीक है, मैं मिल के बता देता हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट। आज है 17 दिसंबर, यानी हमारा दूसरा दिन ख़त्म हो गया है इवेंट का। और आज मैं बहुत बिज़ी था, और आज यस्टरडे हमने टेरेस पे एक्सरसाइज करी थी, क्योंकि मुझे पता था कि बॉडी फटीग होने वाली है, बॉडी का यूज़ होने वाला है बहुत ज़्यादा। और आज मैं सुबह से ही भागम दौड़ी कर रहा था। हमारा इवेंट था कॉट्योर रनवे फैशन वीक, इसका नाम था, मैंने अभी तो बताया नहीं। इसकी वीडियोस मैं BTS में डालूँगा, शायद इस जो मैं ये बोल रहा हूँ इसके साथ ही डालूँ, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। काफ़ी अच्छा इवेंट था और फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था मेरा। ऑलमोस्ट 10:30-11 बज गए थे, और मैंने साथ में मैंने वीडियोस भी बनाई है रैपिड मेट्रो की और एरोसिटी के आसपास के एरिया की, तो आप देख सकोगे। वो ऑलमोस्ट 10:30-11 के करीब का ही था। मेरे को 11:30 से ऊपर हो गए थे घर आते हुए, और अभी भी मैं जगह ही हुआ हूँ। मैं ये एडिटिंग थोड़ा बहुत कर रहा था, ज़्यादा नहीं कर रहा, पर रील जितना कंटेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो इसको मैं कल ही करूँगा। आज मैंने एक चीज़ भी कर दी थी, वो ये है कि मैं ऑलराउंडर बना हुआ था एक तरीके से इवेंट में अपने कंपनी का। तो मैंने फूड स्टॉल में फूड भी बेचा है, एक तरीके से कह सकते हो। मेरा ये फर्स्ट टाइम ये भी एक्सपीरियंस था। तो हमारे फूड में पिज़्ज़ाज थे, जो कि मैं तो खा ही नहीं सकता था, पर मैं बेच रहा था। कल संडे है, तो कल के दिन अगर वो मिलेगा तो मैं खाऊंगा। एक दिन मैं खाता हूँ हफ्ते में। तो मैं ये बता रहा था कि मैं आज फूड बेच रहा था, और उसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो जैसे यूज़ होते हैं, तो हम स्प्रिंकल कर रहे थे एक तरीके से। हमारा पैकेट नहीं था या सैचेट नहीं था, तो उसमें मैंने क्या किया,
हाथ तो धो लिए थे, पर वो जब हम 100-150 चीज़ें जब बेच देते हैं, खाने वाली चीज़ें, और जिसमें हमारे मसाले का एक तरीके से यूज़ हो रहा है, ये मुझे समझ में आया। तो वो हाथ में एक तरीके से बन जाता है, मतलब एक परत बन जाती है। तो अगर तुम नॉर्मली अगर हाथ धोओगे तो उसमें पता नहीं लगता। और मैंने भी नॉर्मली हाथ धोया था एक तरीके से, तो मुझे नहीं पता था, ये मेरा सबसे फर्स्ट टाइम ही एक तरीके से एक्सपीरियंस था। तो मैंने वही हाथ अपनी आंखों में डाल दिया और मैं आधे घंटे तक देख ही नहीं पा रहा था, ऐसा सीन हो गया था। मैं पानी से धोता गया, गर्म पानी, ठंडा पानी। अच्छी चीज़ ये थी इस इवेंट में, जो वॉशरूम था वहाँ पे गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों आ रहा था, तो मैंने दोनों यूज़ किया। और आधे घंटे बाद जाके मेरी एक आँख खुली। मैंने किसी को ये बात नहीं बताई, मैं ये यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि हाँ यार ठीक है, कोई मेरे को भी देख भी नहीं रहा और ये मेरे लिए ही है, तो दूसरों पे हल्ला बोलने से बढ़िया है कि मैं यहाँ पे डालूँ। और इतनी सी चीज़ है कि बीटीएस में जाएगा। तो आधे घंटे तक मैंने पानी डाला, उसके बाद से जाके एक आँख खुली। उस एक आँख के सहारे मैं किसी तरह वॉशरूम से बाहर निकला। 4-5 लोग आए थे, पूछ रहे थे क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई। मैंने उनको बताया, पर वो अननोन थे इसलिए मैंने उनको बता दिया। वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, बचाते देख के अफसोस करके चले जा रहे थे। मुश्किल से मैं बाहर निकला, फिर एक जगह बैठा, और उसके बाद से जब दूसरी आँख जब हल्की हल्की खुली तब जाके मैं वहाँ से निकला था। तो आधा घंटा 40 मिनट तो इसी में ही लग गया था। फिर उसके से मैंने सर को कॉल करके बोला कि सर मैं जा रहा हूँ, और फिर उसके से मैंने वही एरोसिटी का और मेट्रो का जो मैंने वीडियोस बनाए हैं थोड़े थोड़े, वो मैंने किए और फिर घर आ गया। तो ये सब चीज़ें हुआ है। कल हमारा लास्ट दिन है और तीसरा डे है इवेंट का, फैशन वीक का एक तरीके से। तो कल का दिन मेरे को लग रहा है 12-12:30 वहीं बजेंगे। हम किसी भी हाल में सुबह पार्क जाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे को लग रहा है कि शायद मैं ना करूं इसको, मैं कल ही करूंगा। वहाँ पे छोटे छोटे क्लिप्स में काट के रख लेता हूँ अभी, और उसको मैं कल कंपाइल करके रील बना के डाल दूँगा। और 2 दिन का जो हमारा होगा, जैसे आज वाला जो हमारी एक्सरसाइज होगी और कल वाली होगी, वो मैं उसको एज इट इज़ ही डालूँगा। क्योंकि एक तरीके से जो हमने वीक 2 का जो पहला दिन था, संडे या मंडे में बोला था कि हमें 1 मिनट तक अपने आप को टक होल्ड करना है, 1 मिनट तक हमें टक प्लांच होल्ड करना है, 30 से ऊपर हमें टक प्लांच पुशअप्स मारने हैं। तो उसी चीज़ को अचीव करने के लिए मैं वो करूँगा, आज भी मैं वही करूँगा। और उसको मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा ही उसको डालूँ, उसमें कोई कट्स वट्स हल्के भी ना हो। हाँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो बोलने के टाइम मैं कट्स करूँगा, कोशिश करूँगा कि स्टार्टिंग में ही बोलूँ या एंडिंग में बोलूँ, बीच बीच में ना बोलूँ, बीच में सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस रखूँ। और मे भी मैं घर पे भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैं पार्क नहीं जाऊँगा। हम इस हफ्ते क्योंकि फेल हो गए हैं, हम फेल अपने कैलिस्थेनिक्स स्किल से नहीं हुए हैं, जो हम जिस चीज़ के लिए हमने स्टार्ट किया है, पर उसके साथ जो हमने चीज़ें ऐड करी, डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करी, नई चीज़ें ऐड करी, उसमें हम फेल हुए हैं। तो उसको हम नेक्स्ट वीक में हम फिर से स्टार्ट करेंगे और पहले से ज़्यादा हार्ड स्टार्ट करेंगे, ताकि अगर उस पीक पे पहुँचे जहाँ पे वो ना हो पाए। मैं ये कहना चाह रहा था, सॉरी गलत बोल दिया, हम उस पीक तक पहुँच ही ना पाए जहाँ से मैं क्विट कर पाऊँ। ये लाइन ज़्यादा सही है। मतलब हम इतना हार्ड कर देंगे उसको, या इतना हम ऊपर कर देंगे कि अगर मैं नीचे गिरा भी तो उसके नीचे भी एक और बैकअप होगा, तो हम पूरा एंड नहीं होंगे, हम बच जाएंगे। तो यही सब चीज़ें तो मेरे को शेयर करनी थी। मिलते हैं हम सुबह, और कोशिश यही रहेगी पार्क जाने की, पर मेरे को लग नहीं रहा कि पार्क में टाइम वेस्ट होगा। और कल की टाइमिंग इवेंट की है 8 बजे, वहाँ पे पहुँचना है। ऑलमोस्ट मतलब 1.5-2 घंटे लगते हैं। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वेस्ट वर्ड ऐसा कुछ साइड है, ये एरोसिटी के आसपास है। एरोसिटी से मतलब ऑलमोस्ट 15-20 मिनट लगते हैं चलने में, क्योंकि मैं रात को चल के ही आया था, मेरे को समझ में नहीं आया कैसे करूँ क्या करूँ। बस नहीं मिली ना कुछ मिला, और ज़्यादा मैं पैसे खर्च करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं थोड़ा इन सब चीज़ों में नहीं करता, मैं वहीं करता हूँ खर्च। चलो ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे को समझ नहीं आया तो मैंने पैसे, जहाँ मेरे को चीज़ समझ नहीं आती वहाँ मैं पैसे नहीं खर्च करता। पैसों से रिलेटेड की बात अगर मैं कहूँ तो यही सब चीज़ें हुई। कल हमें पहुँचना है 8 बजे तक ऑफिस, या 8:30 तक मैक्स टू मैक्स। तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए